Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about William Faulkner, an American writer. He was born on 25th September 1897 and was died on 6th July 1962. We are going to discuss one of the famous novel, The Sound and the Fury, which was published in 1929. William Faulkner was an American writer and Nobel Prize laureate from Oxford, Mississippi. Faulkner wrote novels, short stories, screenplays, poetry, essays, and a play. He was awarded with the notable awards Nobel Prize in Literature 1949, Pulitzer Prize for Fiction 1955 and 1963, National Book Award 1951 and 1955. The Sound and the Fury. The title has been taken from Shakespeare's famous play Macbeth. The story is about Compson family. The work is notable for employing stream of consciousness style. The details about the novel is about the destruction and downfall of the aristocratic Compson family. The Sound and the Fury is divided into 4 sections. Each section is narrated from a person's perspective. The Sound and the Fury was Faulkner's 4th novel. There are so many characters in the novel, starting with Mr. Compson, Mrs. Compson, and their 4 children, Benjamin Compson, Quentin Compson, Caddy Compson, Jason Compson, and there was a servant named Dilsey Gibson, and one of his grandson, his name was Lusher. So we can go through this. The novel was divided into 4 sections, which was first Benjamin speaking in April 1928, Quentin speaking in June 1910, Jason speaking in April again 1928. Faulkner tells the 4th chapter in his own narrative voice. So here we start the novel. Benji, who was the first narrator of the book, is mentally disabled and completely lacks a sense of time. Jason, a man of corruption, a bitter corrupt man. There was 5 members in the Compson family, in which the father was a drunken father who locks himself in the den with a nice big bottle of whiskey. The mother locks herself in the bedroom with a hot water bottle with her Bible. So अभी तक की स्टोरी में से आप ये समझ सकते हो कि there was a family, Compson family, जिसमें कि टोटल 5 मेंबर्स हैं. ओके, जो फादर है उन्होंने भी अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया है एंड जो मदर है उन्होंने भी अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया है. ठीक है, कुछ अपने रीजंस के वजह से. तो इस कहानी की जो मेन थीम है, जो सब कुछ है, वो ये 4 भाई बहनों पे घूमती रहती है, जिसमें सबका नाम क्या क्या है? बेंजी, जैसन, क्विंटिन एंड कैडी. तो स्टोरी ये है कि जो कैडी है वो तीनों भाइयों की इकलौती बहन है और स्टोरी में हर एक नरेशन में, हर एक चैप्टर में जितने भी सेक्शंस हैं, सारे भाई अपनी बहन के बारे में, कैडी के बारे में सोचते रहते हैं. ठीक है, जो बेंजी हैं, जो कि मेंटली हैंडीकैप्ड है, वो इधर उधर अपने स्मॉल टाउन में मिसिसिपी में उस घर के आसपास घूम रहा था. उसी दौरान गोल्फर्स अक्रॉस द वे येल फॉर देयर कैडीज. आसपास गोल्फ क्लब है जहां पे लोग आपस में कैडीज करके कुछ बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं. तो बेंजिन के कानों में ये बात पड़ती है, कैडी, एक वर्ड आता है कैडी, जिसको वो अपनी सिस्टर कैडी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है. जो गोल्फ क्लब के जो मेंबर्स हैं वो कैडी जो स्पेल कर रहे हैं वो है CADDIE,
जहां पर कैडी जो बेंजी की बहन है उसका स्पेलिंग है CADDY। क्योंकि ये प्रोनाउंस एक जैसा होता है, साउंड्स एक जैसे आ रहे हैं, तो इससे बेंजी अपनी बहन कैडी के बारे में सोच रहा है कि कैडी जो थी वो उसके लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या हो रहा है कि बेंजी कभी फ्लैशबैक में जा रहा है, कभी आज की चीज़ों को सोच रहा है, कभी पुराने टाइम की चीज़ों को सोच रहा है। तो बेंजी के साथ ये सारी स्टोरी चल रही है जो 1928 के दौरान है, जो कि वो बता रहे थे। तो वो कभी अपने पास्ट में, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में जा रहे हैं, कभी अपने प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं, और हर एक मेमोरी के दौरान वो अपनी सिस्टर कैडी को ही याद कर रहे हैं। अब सेकेंड सेक्शन जो कि क्विंटिन से स्टार्ट होता है, जो कि कब बात कर रहे हैं 1910 में। तो क्विंटिन उस टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, अपने हायर स्टडीज के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे पढ़ने के लिए। तो वो अपनी सिस्टर के बारे में, अगेन कैडी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं सोच सोच के कि कैडी के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसके साथ जो भी चीजें हुई वो नहीं होनी चाहिए। और उसी दौरान सोच सोच के जो क्विंटिन है अपनी लाइफ को एंड कर देना चाह रहे थे। और जैसे ही वो एक रिवर में जंप करने वाले थे, वैसे ही हमें पता चलता है कि क्विंटिन फिर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं and he walks around the town in the country and helps a small girl। और उसी दौरान वो एक छोटी सी बच्ची जो रहती है उसकी हेल्प करते हैं। और क्या होता है उसी दौरान, and gets beaten up by a college friend। और उसी दौरान उसके जो कॉलेज फ्रेंड्स रहते हैं वो उसे बीट करते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या था, कैडी जो उनकी सिस्टर रहती है, उन तीनों भाइयों की सिस्टर जो रहती हैं, वो बिफोर मैरिज, शादी के पहले वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है। एंड उन लोगों ने इस चीज को बचाने के लिए उसकी शादी कर दी। देन जब उस मैन को पता चला कि कैडी इज प्रेग्नेंट विद अनदर गाय, ही डिसोन हर, उसने उसको डिसोन कर दिया। जब कैडी वापस अपने घर लौट के आई तो उसके फैमिली वाले ने भी उसे डिसोन कर दिया और उसकी बेबी को रख लिया, जो कि बाद में जाके जूनियर क्विंटिन, अपने अंकल के नाम से, जूनियर क्विंटिन के नाम से जानी जाएगी। Now again came Jason, the third brother of Caddy's. He was speaking in 1928. He was a bitter, corrupt man, as I told you earlier, whose hobby includes stealing from Caddy's daughter and skipping out of his work. In the course of Jason's day, he managed to scam Quentin, that Caddy's daughter, out of $50, forged a check from Caddy, betrayed Disley, the long-suffering servant of the family, and lose lots of money at the stock exchange. In the other words, he is a busy guy, and he also chases Quentin Jr. around for a while. It seems that she runs off with a circus man. तो अब हो क्या रहा है, जो जैसन थे उन्होंने अपनी भतीजी जो कैडी है, उसकी बेटी जूनियर क्विंटिन, उसके पास से जितने भी पैसे उसे मिले वो उसे लेके भाग गए और कहाँ लगा दिया, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। और जब क्या हुआ, फिर वो सारे पैसे हार गए। जब उन्होंने दोबारा जूनियर क्विंटिन को ढूंढने की कोशिश की तो इट सीम्स लाइक कि वो किसी के साथ भाग गई, कोई सर्कस मैन था जिसके साथ वो भाग गई। आफ्टर द क्रेजीनेस ऑफ जैसन्स डे, द फाइनल सेक्शन ऑफ द नॉवेल इज अ ब्रीथ एंड फ्रेश एयर। और अब क्या होता है, चीजें वापस से अब प्रेजेंट में आ रही है। तो अभी तक की चीजें कुछ फ्लैशबैक, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरह से चल रही थी, अब चीजें क्या हो रही है, प्रेजेंट में आ रही है। It follows Disley as she prepares breakfast for the day and heads off to the church. जो डिजली थी, जो सर्वेंट थी उस फैमिली की, उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और चर्च के लिए चली गई। In between these events, of course, there is a bit good action. Quentin Jr. runs off, taking Jason's treasure hoard with her. अब क्या होता है, जो जूनियर क्विंटिन थी वो वापस आती है और जो जैसन के पास जितनी भी ट्रेजर्स थे, जो भी चीजें थी, वो लेके वो फिर से भाग जाती है। बट जैसन्स नॉट ऑल दैट हैप्पी अबाउट द टर्न ऑफ इवेंट्स। अब क्या करते हैं जैसन,
कॉप्स को बुलाते हैं कि कैडी की जो बेटी है जूनियर क्विंटिन, उसको पकड़ो, उसने मेरी जितने भी पैसे थे, जो भी चीजें थी वो लेके भाग गई है, तो अब उसे पकड़ो। बट कॉप्स भी कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और जैसन पे मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसन को लगता है कि अब तो शायद कोई पकड़ेगा नहीं, तो वो खुद ही निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है देन, फिर अब आती है स्टोरी डिल्सी पे। डिल्सी हेड्स टू चर्च, वो चर्च की तरफ जा रही है, वेयर a very unimpressive pastor manages to deliver an absolutely astounding sermon. Disley starts to cry. She recognizes Quentin's disappearance for what it is, the end of the Compson family. तो अब डिस्ली जो है, जो कि चर्च में जा चुकी हैं, वो जो सरमन सुन रही हैं, तो अब क्या करती है, वो क्विंटिन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, उसने किसी वजह से सुसाइड कर ली। तो अब क्विंटिन के बारे में वो सोच रही हैं और सोच सोच के अचानक से रोने लगती हैं। और फिर क्या होता है, उन्हें लगता है कि अब तो कॉम्सन फैमिली की बिल्कुल एंड होने लगी है। देन जैसन अगेन ट्राइंग टू फाइंड जूनियर क्विंटिन एंड फेल्स। तो क्योंकि क्विंटिन जो थी, जूनियर क्विंटिन, वो जैसन की सारी चीजें लेके भाग गई थी, तो जैसन उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो मिल नहीं पाती है। He does get to smack a little old man around though. It makes him feel better. तो इसी दौरान उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जिसको जैसन बहुत ब्रूटली ट्रीट करता है, जिससे शायद उसे खुशी मिलती है। जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा आता है कभी, जब मूड बहुत खराब होता है तो आप या गुस्सा निकाल लो, फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल लो, तो शायद आपके मूड को थोड़ा अच्छा लगता है। तो चीजें वही हैं। Meanwhile, Benjing got out of his Sunday afternoon ride when Lusher Disley grandson takes a carriage out of the wrong way. Again चीजें फिर से प्रेजेंट में आ रही है। जो बेंजी थे, जो कि मेंटली डिसेबल थे, अब कहाँ जा रहे हैं, कहीं राइड पे जा रहे हैं आफ्टरनून में। और लश्यर जो डिल्सी के ग्रैंडसन है, वो कैरेज निकालते हैं और किसी वजह से कैरेज जो होती है रॉन्ग वे ले लेती है। एंड बेंजी लूजेज हिज मिडिल ऑफ टाउन। ही हेट्स चेंजेस इन हिज रूटीन। और बेंजी को क्या होता है, क्योंकि वो मेंटली डिसेबल या हैंडीकैप्ड रहते हैं, तो उन्हें जो भी उनके रूटीन में चेंजेस होता है, जो पर डे होता है, वो नहीं होता। अगर थोड़ी भी चेंजेस हो जाती हैं तो वो बहुत ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ। बेंजी को जैसे ही लगा कि जो कैरेज है वो रॉन्ग लेन में जा रही है, रॉन्ग साइड में जा रही है, तो उन्हें बहुत तेजी से गुस्सा आने लगा। अब क्या होगा? He started bellowing. The carriage runs wild. और क्योंकि वो जोर जोर से चीखने लगा, तो कैरेज जो है जिसमें घोड़े लगे रहते हैं, वो घोड़े और डर गए और वो तेजी से चलने लगे, बहुत जोर जोर से भागना शुरू कर दिए। एंड देन जैसन हिमसेल्फ हैज टू स्टेप इन। अब क्या होता है, अब जैसन वापस से आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीजें बहुत ही अनकंट्रोल हो गई थी और जैसन आते हैं और सब कुछ अब ठीक करते हैं। The novel ends with order restored. The carriage starts moving in the right direction. अब क्या होता है, जैसे ही जैसन आते हैं, चीजों को सब कुछ प्रॉपर करते, ठीक करते हैं और कैरेज अपने राइट डायरेक्शन में वापस से चलना शुरू कर देता है। एंड बेंजिंग वॉचेस कामली एट एवरीथिंग पासेस बाय इन द प्रॉपर ऑर्डर। और अब सारी चीजें बेंजिंग के हिसाब से हो रही थी, सारी चीजें प्रॉपरली मूव कर रही थी, इधर उधर जा रही थी। तो अब बेंजिंग को सब कुछ अच्छा लग रहा था एंड वो कामली अब कैरेज पे बैठे हुए थे। So that's it for this video lecture. Thank you everyone.